Haki butalis, yaki balayap, kila pensai, baki dangim, bat yaki badangim, kila pensai, baki layap. Barok nginget Jakarta bahakan negari kadon kajing aper kajat benriu, bat kanyam kariti dustur. Henry, haka kerteng jongka election. Election commissioner haka kerteng jongka unity and diversity, ulalit prung hadu yaki sanspa kendai ngut kibriu haka wei kiyeng. Tat hadu mentaru nakaliang jong chief election commissioner Ugianis Kumar, udang yaile, ban gaslight yaki paiba nong sinong jong kanegari hi barakwei. Nakaliang jong chief election commissioner Ugianis Kumar. Ulayat hu dakaba aidau hakoi ka conference jongu. Hana kumno ngan pini. Ye ki durki jong ki CCTV. Namar ki babun hi ki bawan kum ki kmi ki men para kantai. Haki jakat hebut. बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? Komkeren jong ni ubre ute thik kembali pan ki durki jong ki kamrathia lane ki balik bar lipi. Hadin pat usaha la perta haki conference sana. Wanra peni ki evidence. Sei kita ki evidence. Wanra sini. Baro ki evidence sudon hibadu tap sapla lade. Hadin pat ususuak le melek le bam bena bam tip e du am ukuli pat iki we sei ki evidence wanra ki evidence sana. Kublai perlok sai sen pilang baru ipi we hakan ngapor hakan video jonga. Hakan nyu tarik jung bena Agos jung senam arah jar pesan. Hakasin kebaningkong haka conference juki kongres nakaliang jung Rahul Gandhi ulasai madan. Bayade bat kajing satu jung kibut hakan kari India jungi. Bat saisin haka khatlai tarik jung bena Agos haka conference ka baar baladon uwei unong yalam jung kaseng BJP ulasai yakamat bayade bat kajing satu yakibut hakipor election hakan kari India jungi. Bat ka kerteng jung ni unong yalam seng jung ka BJP udei u Anurag Thakur. 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स ये देखिए कैसे हैं. Saisin haka kanyau tarik jung bena Agos haka conference ko balai nakaliang jung ki paiba kidang mot bau chief election commissioner in ai da ka bating e pat insim ka sinjam ka bae ban ai yaki ki balakun no bayade bat kajing satu yaki but Henry nakaliang jung new chief election commissioner ula keren kulmar kasabalap bat lalong ru kumba ula pen thobria kala ya ledi bat kala kala memes penban hakiran san social media silak arspa san paubut kebala satu bat kibala satu ya kibut kadon hakisan rukom bat kei kita kibut kiba satu hakisan rukom kalong kumne harum kebaningkong duplicate voters hadu khadwe hajar khandai spa an rupusan tam kebaar kalong fake and invalid address hadu 10,000 khandai spa tam kebalai kalong bulk voter in single address kadon hadu 10,000 sospa sanpu artam bat kabasau kalong invalid photos hadu 1,000 sispa laipu artam bat kabasan kalong misuse of form 6 hadu laipu lai hajar nuspa khandai pu artam hakane ka jinglum jingkain kuntup baro kadon hadu silak tam bat bayade bat kani ka jingkain fila ban perkhat bat ban munduru kala bandai nakari India hi barakoi lene tang nakoi ka state Henry om kumta Onda filatip ya kijing sya pensakendit bayade bat kani ka jingcha akaliang katim jong Rahul Gandhi lam bat ka jing tristom jong ki kilala bansai madan haka conference jong Rahul Gandhi bayade bat kani ka jing satu kini gibut om habaro koi kari lane hakoi ka state Henry tang hakoi ka constituency bat kata ka single constituency kabala investigate dagi tim jong Rahul Gandhi kadai ka Bangalore Central Lok Sabha seat bat hakane ka jing akren kalamiru bayade bat kawai ka segmen kabadai kebaong Mahadep Assembly segment. Hangne kadon hadu henrulak steng kibuters. Fila ban mudur hadu kano haki magnitude kebala satu kibuters. Tuale perlok hakne kaporing ni apet ni asngap. Mikei nakaliang jung Rahul Gandhi ubala syong la batai la peni la pensai. Bayade bat kane ka jing satu. Ye kibut haka conference jung bat kane ka durki kebala sapriang stat bah hakiran san social media beper hakini kisngi. जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में ले बनाते थे रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे. चुनाव समझता हूं 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं. पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं. कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा. चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का. मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे. बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले. हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया. ये असंभव था, ये हो ही नहीं सकता. उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं. हमारी सरकार चोरी हुई थी. 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी.
और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो वो दिखती भी नहीं है, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ERO ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए CCTV का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, CCTV फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, RTI भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए SIR आया है। ये SIR जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो SIR है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ
एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी।